الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت الشيء مما أمركم الله إلا وقد أمرتكم به ولا شيء مما نهاكم الله عنه إلا نهيتكم عنه. الحديث. قابل قدر معزز صدر جلسہ بزرگ عالم دین بقیت السلف حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اسلائی حفظہ اللہ، اور اس عظیم جلسے کی نظامت کرتے ہوئے عزیز گرامی مولانا تنویر مختار صاحب مفتاحی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، اور ہمارے اس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے بوڑھی پنچایت کے سابق مکھیا جناب مجاہد احمد صاحب، جو پورے سیمانچل میں مشہور ہیں اور مکھیا جی سے سب بڑی محبت رکھتے ہیں، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، آج کی اس جلسے میں بڑی ہی اچھوتے اور اچھے مولانا لوگوں کو بلا لیا۔ سیم حضرت مولانا جرجیت صاحب اٹاوا یوپی کی طرح بولنے والا، یوپی ہی کا ضلع سدھارتھ نگر کے حضرت مولانا نیاز احمد فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو اردو میں تقریر کریں، اور بنگلہ زبان کے بڑے پراپر خطیب بنگال سے آئے ہوئے مولانا حیدر علی صاحب مرشید آباد، جو بنگلہ زبان کے بڑے اچھے خطیب ہیں۔ ان کے بعد اپنے علاقے کا سیمانچل میں جن کی تقریر نے دھوم مچا کے رکھی ہے بھی، مولانا حسین صاحب سلفی دیوی نگر پورنیہ حفظہ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ان سارے علماء کرام کو آپ کو ایک بدیگر سننا ہے، اور مشہور شاعر مونت بھنجن سے حسین احمد حسین، ان کا غزل نعت شریف سن چکے ہیں آپ شان ہی سے۔ میں آپ حضرات کے سامنے سے آدھے گھنٹے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ میں آدھے گھنٹے میں چند قیمتی باتیں آپ کو بتانے کی جسارت کروں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام ایک مہکتا ہوا گلدستہ ہے، جس کے ہر پل میں روحانی مہک، ہر کلی میں اخلاق و کردار کے نقوش ہے۔ غرض کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، جو کسی سادہ لوہی اور کمگوئی کا نام نہیں ہے۔ بعض دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام لطف و کرم کا مجموعہ، عفو و درگزر کا سرچشمہ، پاکیزگی و لطافت کا منبع، شرم و حیا کا مخزن، جمال آرائے انجمن، کمال آرائے علم و فن کا نام مذہبی اسلام۔ دوستو بزرگوں، اللہ نے اسی لیے کہا قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین مذہبی اسلام۔ قرآن پاک کی آیت میں نے خطبے کے بعد جو تلاوت کی ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے روک لو۔ حدیث پاک کا ترجمہ، نبی فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ الا وقد امرتکم بہ، میں نے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہو میں تم کو نہ بتایا۔ یعنی نبی سب کچھ بتا کے چلے گئے۔ لہذا اماموں کی، بزرگوں کی احترام ضروری ہے، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں نبی سب کچھ بتا کے چلے گئے۔ نبی فرما رہے ہیں ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ الا وقد امرتکم، جن چیزوں کا بھی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں بتا دیا، ولا شیئا مما نہاکم اللہ عنہ،
इल्ला वक़द नहैतु। नबी फरमाते हैं कि कायनात में ऐसी चीजें भी मैंने नहीं छोड़ी जिससे अल्लाह ने मुझको मना किया हो, मैं तुमको मना ना किया हो। यानी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुज़िर है, नुकसानदेह चीज है, उन सारी चीजों से आपको मना कर दिया है। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनियात, तालीमात, साइंसियात, दुनिया की हर चीजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बताया। इसलिए कोई चीज साइंस की या मौजूदा न्यू जो फिरंगी तहजीब और तालीम है, इसके भी मुखालिफ नहीं है, लेकिन पूरा सपोर्ट भी नहीं है, उसमें कुछ हद तक सेम है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि मैं सब चीज बता दिया हूँ, लिहाजा हमको कोई ऐसा फतवा, ऐसा मसला की जरूरत नहीं है कि हम इस मसले को पूछने के लिए मौलाना साहब से अपना कौल पूछे, या बोले कि हमारे बड़े ने फरमाया, या बोले कि हमारे बुजुर्ग ने कहा। लेकिन इसी में पूरी दुनिया के मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। फलस्तीन का नाम आपने सुना है, मुसलमानों का किबला अव्वल है। फलस्तीन मुल्क को जिसको जनाब यासिर अराफात, पूर्व बादशाह यासिर अराफात ने दुल्हन की तरह से सजाया था, आज उस फलस्तीन में 2.5 लाख मुसलमान मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, लड़कियों को तहरीक कर दिया कत्ले आम का। और ईरान जैसा शिया मुल्क मदद के लिए सामान खाने का नहीं भेजा, हथियार नहीं भेजा, भेजा क्या, 2 ट्रक कफन खरीद करके भेज दिया फलस्तीन कि उनको कपड़ा लपेट करके समुद्र में फेंक दो। 2.5 लाख आदमी की लाश। एक तरफ सऊदी अरब दोनों की मुसालिहत करना चाहा, जब भी मुसालिहत की बात हुई उसके एक रोज पहले ईरान ने फलस्तीन के प्रधानमंत्री को बुला के इसराइलियों से, यहूदियों से बम दगवा कर, मिसाइल दगवा कर खत्म कर दिया। मामला है बहुत से सीधे साधे मुसलमान, हिंदुस्तान का मीडिया देखने वाला, पढ़ने वाला जो है, उस मीडिया वाला नहीं जान रहे कि ईरान क्या है। ईरान सुन्नियों का दुश्मन मुल्क है, शिया मुल्क है। तुर्की भी यही था, अभी बदला है। ईरान, ये जो आयतुल्लाह खुमैनी दिखा रहे हैं कि हम सुन्नी भाई भाई, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। इसलिए 2 ग्रुप ईरान के अंदर तैयार कर रखा है। एक का नाम है हिजबुल्लाह, दूसरे ग्रुप का नाम है हौसी, जिसको शॉर्ट में हूती भी कहते हैं। हौसी ग्रुप है। 2 ग्रुप का मेन मकसद है कि पूरी दुनिया से हर साल कम से कम 5 लाख सुन्नियों को मारो, जमा करो। ये मकसद है। जब सुन्नी बोलेगा तो उसमें सब मुराद हो जाएगा, अहले हदीस, देवबंदी, हनफी, शाफी, बरेलवी, सब लोग। ये अलग बात है कि हमारे माशरे में कुछ लोग कहते हैं हम सुन्नी है, अलग सुन्नी का मामला है। समझ रहे हैं कि आपसी झगड़े में मुस्लिम समाज, एक तरफ यमन और तुर्किस्तान के चारों तरफ हौसी और हिजबुल्लाह का ईरान ग्रुप तैयार करके चाहता है कि सऊदी अरब को कब्जा जमाए। उधर लड़ाई है शिया और सुन्नी की, और इधर सुन्नियों को भी अलग लड़ाई है। सुन्नियों में किसी को एक दूसरे से मेल नहीं, यह अफसोस का मकाम है। काबा शरीफ में अप्रैल महीने में मैं फजर की नमाज काबा शरीफ में पढ़ने के बाद निकल रहा हूँ, तो उस दिन मेरी कंप्यूटर में दिखाया जा रहा था कि 40 लाख आदमी फजर की नमाज में थे। कितने लाख? 40 लाख। बाहर देख रहे हैं तो हमारे कुछ बरेलवी भाई, हमारे इलाके का कटिहार 560 का, सब लोग बैठे हुए कुर्सी।
जमात जब खत्म हो गई तब वो लोग नमाज पढ़ने के लिए गए, साथ में लेडीज भी। तो कहा आप लोग नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं काबा में भी? तो जो निकाब लगा के बैठी है लेडीज औरत, वो कह रही है कि काबा में हम लोग नहीं पढ़ते इमाम के पीछे नमाज। कहा क्यों? कहा इसलिए कि काबा में भटिया की तरह नमाज पढ़ा है। काबा में किस तरह नमाज पढ़ा है? भटिया की तरह। हमने कहा क्या भटिया की तरह? का बड़े कस के आमीन बोलता है और इकामत के कलिमात डबल नहीं बोलता है आजान की तरह। हेलो अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो तासुर देख रहे हैं, काबा शरीफ जहां 40 लाख आदमी पहुंचे वो उमरा हज की बात नहीं, हज में तो करोड़ों हो जाता है, उसमें भी पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार। अल्लाह के रसूल ने सबको मुत्तहिद होने का दर्ज दिया कि जो रसूल थे उनको लेना है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में आखिरी हज में अरफात के मैदान पे आपने खुतबा दिया था। खुतबे में कहा था आज के बाद किसी काले को गोरे पर फजीलत हासिल नहीं, किसी गोरे को काले पर नहीं, किसी नाटे को लंबा पर नहीं, सब सेम बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अगर आपने फरमाया जो परहेज़गारी तक़वा में आगे होगा उनका मांगे जाएगा। सब जात बिरादरी के सिलसिले को खत्म कर दिया। आपने ये भी कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्कुम इख़्वतुल जाहिलिया, अल्लाह की तारीफ है जिस अल्लाह ने जाहिली तकब्बुर घमंड किब्र को खत्म कर दिया। आज उसको हम मानने के लिए तैयार। क्या हो गया है मुस्लिम समाज? कुछ लोग इस्लाम के नाम पर, रसूल के मोहब्बत के नाम पर, नबी के मोहब्बत के नाम पर मिलादुल नबी मनाते हैं, जश्न मिलादुल नबी मनाते हैं। मुहर्रम के मौके पर ताज्जुब की बात है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है और डीजे बज रहा है, उस डीजे के पीछे डांस कर रहा है, नाच रहा है और क्या कह रहा है? या हुसैन, या अली, या फातिमा कहती हुई जा। इनको शरीयत मालूम नहीं है, इनको नबी का फरमान मालूम नहीं है। हजरत हुसैन के बाप हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस सही तिरमिजी की है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत अली के साथ मैं बनु नजीर यहूदी के गांव होके गुजर रहा था, तो उसमें ठप ठप ढोलक की आवाज आई, तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ की उंगलियों को कान पे रख लिया। हजरत अली कहते हैं इससे मुझको समझ में आया कि मेरे नबी को ढोलक और बजने वाली चीज से बड़ी नफरत। ये कैसे मुहब्बत रसूल है कि मुहर्रम के मौके पर डीजे के पीछे चेहरे पे दाढ़ी रखकर सर पे टोपी रखी का या हुसैन, या अली, या फातिमा, जबकि हुसैन का बाप अली मुर्तजा का यह हाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं कि नबी कायनात को देखा कि आप बनु नज़ीर के गांव होकर गुजर रहे थे, तो ढोलक की आवाज आई तो आपने कानों को रूई ठेस ली। अज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है एक हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बच्ची आई जिनके पैर पर घुंघरू झनझन की आवाज बजने वाली, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बीवी है, हम सब मोमिनों की रूहानी माँ है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बच्ची को घर पे ईद करने नहीं दिया, दाखिल होने नहीं दिया। और बच्ची की माँ आगे बोलने लगी, आयशा क्या बात है, मेरी बच्ची को अंदर ना जाने नहीं दे रहे हो? कह रहे हैं कि हजरत आयशा कहती है कि मेरी नबी को हर बजने वाली चीज जिसमें म्यूजिक हो, गुनगुनाहट हो, उस चीज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत, इसलिए उनको अंदर जाने नहीं दिया। और उस उम्मत के हम मानने वाले क्या हुआ? इलेक्शन हो गया, जात बिरादरी की लड़ाई, वो तो छोटी जात है, वो तो जुल्हा है, वो तो कुजड़ा है, वो तो कवारी है, वो तो बदिया है, वो तो बलदैया है, वो हम तो शेख है, सैयद है, खान है, पठान है, लहरी है, नालबंद है, दुनिया में हजार किस्म की जातें मौजूद है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो जात बिरादरी की तासुब की दावत दी, हदीस अल्लाह के रसूल फरमाते मन दआ इला सबियतिन, जिसने तासुब की जात बिरादरी की घमंड की दावत दी, वो
वो मोमिन होना तो दूर की बात है, हमारी उम्मत में से नहीं है। क्या पता चला कि जो आदमी बोलेगा कि ये तो छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है, जात बिरादरी का तासुब करेगा, वो आदमी नबी फरमाते हमारी उम्मत में से, उम्मत से खारिज है, उम्मत से बाहर है, वो मौमिन नहीं है। आज हम बड़े बड़े मौलाना हैं, वो भी कहते हैं कि ये तो जुला है, ये तो दुनिया है, ये तो कुजरा है, ये तो बधिया है। अल्लाह अकबर, क्या इन लोगों को पता है? नबी की हदीस मालूम नहीं कि नबी कायनात ने फरमाया दूसरी हदीस में कि उस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर, राई समझते हैं ना, सरसों के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है जो तासुब रखे, जो तासुब रखे। क्या मतलब? उस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान नहीं जो कहे कि हमसे घटिया है, ये तो जुला है, ये तो खुट्टा है, ये तो लहरी है, तो नालबंद है, ये तो मंसूरी है, ये तो कुजरा है, ये तो फलाना है। ऐसी तासुब रखने वाला नमाज पढ़ने के बाद, रोजा रखने के बाद, हज करने के बाद भी नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो जहन्नमी पापी। इसलिए मेरे भाइयों, मजाक से कोई अगर कहे कि हमारे अंसारी भाई है बैठ के अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे सिरशाबादी बधिया भाई है, मजाक से अगर कोई बोले कि ये तो भुट्टा है, ये तो दुनिया है, तो चलेगा, मजाक तो अल्लाह माफ कर सकता है। लेकिन अगर दिल से कोई नफरत रखे कि ये तो खान है, ये पठान है, शेख सैयद नबी ने इस सिस्टम को हज्जतुल विदा में आखिरी खुतबे में खत्म कर दिया था कि आज के बाद कोई जात बिरादरी किसी काले गोरी की फजीलत हासिल नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिन रसूल है, काले कलोट है, हबशी खानदान का है। हजरत बिलाल जब तशरीफ लाए, बिलाल को देखकर कुरैशी आला दर्जे का शेख व सैयद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु देश के प्रधानमंत्री है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक ही कुर्सी है, फारूक आजम कुर्सी में बैठे हैं, बिलाल आ गया, फारूक आजम ने कुर्सी छोड़ के बिलाल को बैठाया। बिलाल रोने लगे कि अमीर अल मोमिनीन, आप 6 ज़बानों के माहिर हैं, आप आलिम बड़े हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मुझको उठा के कुर्सी में बैठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हजरत उमर ने कहा बिलाल, जब नबी मेराज में गए थे, नबी को आसमान का सैर कराया गया था, तो बिलाल जन्नत में जूते की आवाज, जूते की खड़खड़ाहट की आवाज बिलाल का मैं सुन के आया हूं। किसने कहा था? नबी ने कहा था। कहा उमर, हमको देख के आप कुर्सी छोड़ रहे हैं? उमर ने कहा, नबी ने कहा कि जन्नत में बिलाल की चलने की आवाज, बिलाल की चलने की आहट सुन के आया हूं। ये बिलाल, तुम हबशी हो, छोटे बिरादरी के हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम इसका डायनामिट करता है, इस्लाम इसको मिटा देता है सफाई हस्ती से। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुर्सी में बैठाने का काम किया। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि नबी ने फरमाया होगा आताकुमुर रसूल, अल्लाह ने कह दिया कि जो तुमको रसूल दे उनको ले लो, और जिससे रसूल बना करे उससे रुक जाओ। फिर भी हम लेने वाले नहीं। पूरी हिंदुस्तान में ज्यादा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में फिरके में बटे। जरा गौर कीजिए, कुरान हजरत उस्मान के दौर में जमा हो गया था, इसलिए कुरान में किसी को इख्तिलाफ नहीं है, उल्टी सीधी तर्जुमा करे अलग बात है, लेकिन हदीस रसूल चूंकि बाद में जमा किया गया था, इसलिए इसमें बड़ी खलफसारी और इसमें कुछ मिलावट। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 1 लाख से ज्यादा हदीसों को जमा किए थे, और जमा करने के बाद बुखारी शरीफ में सिर्फ 4,500 हदीस को रखा, और मुकर्रात को हटा दिया जाए तो 3500 हदीस बुखारी शरीफ में रखे। बाकी सब हदीसों को हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नहीं। क्यों? हदीस में झमेला है, हर चीज में है। कहते हैं प्लेटफार्म पे आ जाए, जात बिरादरी की तासुब खत्म करो, नबी का फरमान है, लेकिन खत्म नहीं करे, है कि नहीं? इमाम शाफी ने कहा कि हाथ को ऊपर बांधो। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कूफा के रहने वाले थे, इन्होंने कह दिया कि हाथ को नीचे बांधो। तब तो हम नीचे बांधेंगे, हम इमाम साहब के मानने वाले। तो इमामों का इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए? शाफी ने कहा हाथ को बहुत ऊपर बांधो, और
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاتھ کو نیچے باندھو، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ سمیع اللہ کے بعد پھر ہاتھ کو باندھو، اور امام مالک نے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کیوں اماموں کی بات پر کیوں جائے؟ یہاں اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دے ان کو لینا چاہیے، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جانا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو گالی دے تو مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں۔ کوئی آدمی اگر کسی بھی امام کی توہین کرے وہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے۔ ہم اماموں کا احترام کرتے ہیں، لیکن شریعت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتی ہے۔ بنوانا ہو تو رب کا قرآن یا محمد کا فرمان دکھانا ہو۔ لہذا امام مالک نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو، ہم نہیں مانیں گے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ہاتھ نیچے باندھو، ہم نہیں مانیں گے۔ امام شافعی نے ہاتھ بہت اوپر باندھنے کہا، نہیں مانیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا سمیع اللہ کے بعد پھر ہاتھ کو باندھ لو تب رکوع میں سجدے میں جاؤ، ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا کہنا ہے حدیث رسول ہے، نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھے تھے اس میں ہاتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو یہاں تک اٹھا کر کے ہاتھ کو سینے سے نیچے اس جگہ پہ باندھنے کا تھا۔ اور جانتے بہت سے ہمارے سرشوادی بچے بھی باہر رہ کر دو ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، بڑی محبت سے کرتے، محبت بڑھتی کرتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ سراسر غلط ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علماء کی ایک جماعت بھی حدیث ہے ملاقات کی، حضرت علی سے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا تو ان لوگوں نے کہا، کوفہ کے لوگ تھے، کہا کہ علی دو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ تو حضرت علی نے کیا جواب دیا جانتے کہ دایاں ہاتھ اس کام کے لیے بتائے، نبی کی حدیث سن لو، یحب التیامن فی کل شیء، نبی ہر کام میں دایاں پسند کرتے ہیں۔ نبی کو کرتا پہنتے ہوئے دیکھا تو پہلے دایاں آتے، نبی کو ناخن کاٹتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں کا، نبی کو بال پہ کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں جانب کنگھی کرتے تھے، نبی کو جوتا پہنتے ہوئے دیکھا تو پہلے دائیں پیر میں پہنتے تھے۔ نبی ہر کام میں دایاں پسند کرتے تھے۔ یحب التیامن فی کل شیء، نبی کا فرمان موجود ہے۔ علی کہتے ہیں یہ بایاں ہاتھ ناک کا نیٹا صاف کرنے کے لیے ہے، یہ بایاں ہاتھ پاخانہ کرنے کے بعد استنجا کرنے کے لیے ہے، یہ بایاں ہاتھ صفائی کے لیے ہے۔ ہر گندی چیز کو بائیں ہاتھ سے چھو کے دیکھا جاتا ہے، اس لیے میں نے کبھی گوارا نہیں کیا ہے کہ یہ ہاتھ جس میں میں نے استنجا کی ہے، گندگیاں صاف کی ہے، ناک کا نیٹا پھینکا ہے، اس بائیں ہاتھ کو نبی کے ہاتھ کے ساتھ ملانے کا کام کرے۔ اس لیے علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، حضرت حسین حسن کے باپ ہے، نبی کے داماد ہے۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں میں نے نبی کو زندگی میں دیکھا کہ دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے، اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر دائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ لیکن ضد ماننے والے نہیں ہیں کہ ہمارے بڑے نے فرمایا، ہمارے امام نے کہا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرو، محبت زیادہ بڑھے گی، اس لیے امام جی کی بات کو مانی جائے گی۔ ہائے کیا ہو گیا مسلم سماج کو کہ ہم نے اپنے مسلک کی معیار امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر کے آج کے دور کے امام اور محدثین کو مان لیا، جو غلط ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ سکتے تھے ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط کیا ہے؟ جات برادری کی تعصب نبی نے کرنا منع کیا، ہم نہیں کریں۔ شیخ رہے، سید رہے، خان رہے، پٹھان رہے، منصوری رہے، لہری رہے، رائم رہے، سبزی فروش رہے، منصوری رہے، مغل رہے، شرشابادی رہے، کوئی بھی برادری کے لوگ رہے، ہم دل سے ان کو اپنا بھائی مانیں، تب آپ مومن۔ دوسرا کام کیا ہے؟ مسلک کے معاملے میں کسی بھی بات کے لیے ہم حدیث رسول مولانا صاحب
हमारा दादा इंतकाल कर गए, इनके लिए आप अफराद से गुजारिश है कि मौलाना हुसैन साहब सलफी को स्टेज पर लाया जाए। तो कहा कुरान पढ़वा रहे हैं, कहेंगे इमाम साहब ये हदीस रसूल दिखाइए, कोई हदीस सुना दीजिए। किस किताब में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चों को किराए पर बुलाकर मैयत को बख्शवाने के लिए कुरान खानी कराए जाते थे? नहीं, हम नहीं मानते, हमको नबी का कौल चाहिए। नमाज में, रोजे, हर इबादत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल चाहिए, नबी का फरमान चाहिए। अगर नबी का फरमान नहीं है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। और शेर पाकिस्तान अल्लामा हिसान रही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि मुझको रब का कुरान दिखाओ या मोहम्मद का फरमान दिखाओ। अगर कोई मौला मोहम्मद को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर के हमारे बड़े ने कहा उस मौलवी की तलवार से गर्दन उड़ा दो, यानी उनको दो टुकड़ा करके जमा कर दो, ये फतवा लागू किया था। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये क्या हो गया मुस्लिम समाज का कि हमारा काबा एक है, किबला एक है, कुरान एक है, मुसलमान का तरीका एक है, नमाज हमारा आपका सबका 5 वक्त ही पढ़ना है, सेम समय है, लेकिन हमने छोटी छोटी बातों को लेकर के अपनी मसलक के अंदर हजारों फिरकों को तैयार करने का काम किया। आज भी आज़म करो, आज इस प्लेटफार्म पे आ जाओ कि इस प्लेटफार्म में रब का कुरान और मोहम्मद का फरमान, अगर मोहम्मद का फरमान भी मौजूद नहीं है तो उस बात को हम रद्दी की टोकरी में फेंकने के लिए तैयार। इमाम आज़म अबू हनीफा ने भी कहा था इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जो हदीस सही होगा वही मेरा मजहब है। इसलिए मेरे शेख सैयद खान पठान मंसूरी अंसारी सब भाइयों से निवेदन है, गुजारिश है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है और यहाँ हम जात बिरादरी के तासुब के लिए इतने समझाने के बावजूद भी पूरे बिहार के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट ने होश उड़ा दिया है कि आज तुम किस डगर में थे कि 25 सीटों में ऐसा है कि तुम आधा इधर हो आधा उधर हो, कहीं 2 हिस्सा इधर है, तीसरा हिस्सा इधर है, बीच में आपने दूसरे को जिताने का काम किया है। मेरे भाई, ये इत्तेहाद का काम नहीं, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी मुसलमानों के अंदर ये सब कमजोरी है कि हम जात बरादरी सैयद मसलक की लड़ाई को लेकर रखते हैं। इसलिए अहद करें कि हम शरीयत के मामले में उसी बात को शरीयत मानेंगे जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस या कुरान की आयत मौजूद हो। अगर कुरान की आयत या नबी की हदीस नहीं सुना सके तो मौलाना की उस बात को रद्दी की टोकरी में फेंक दें। ये जुमला कहना है कि मौलाना साहब मुहर्रम मनाते हो, नबी के दौर में मनाया गया था, सहाबाए कराम के दौर में कहा नहीं, अगर नहीं मनाया गया हम नहीं मनाएंगे। यही मोमिन की पहचान है। और माताकुम रसूल, अल्लाह ने कहा जो रसूल से उनको लेना है, रसूल ने नहीं दिया है इसलिए हम नहीं लेंगे। कोई कहे कि डीजे बजा करके हम नाच गाना करें, क्या करें? नहीं, इसलिए कि रसूल इस चीज से नफरत करते थे। नबी कायदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी का नाम मोहब्बत रसूल है। ऐसा नहीं कि नबी का नाम आए तो मोहम्मद पे झूम जाए, मोहब्बत पे झूम जाए और नबी का काम आए तो घूम जाए। अरे मोहब्बत रसूल, मोहब्बत की भी 1 मिनट, मोहब्बत की भी 3 किस्में है। एक माँ बाप की मोहब्बत है, एक बीवी की मोहब्बत है। अगर बीवी से खूब मोहब्बत करो और उनके साथ सो ही नहीं, बीवी खुश रहेगी नहीं। बीवी का मोहब्बत का अलग मामला है, माँ बाप की मोहब्बत अलग है, अपने औलाद की मोहब्बत अलग है, उस्तादों की मोहब्बत अलग है, खानदान की मोहब्बत अलग है, नबी की भी मोहब्बत है। तो नबी की मोहब्बत का नाम ऐसा नहीं है कि उनका नाम आए तो हम जुबानों को अपने हाथों को चाटने लगे, चूमने लगे। नबी से मोहब्बत का माना यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को सरे तस्लीम खम किया जाए। शराब पीने का मन कर रहा है, नबी ने मना किया नहीं पिएंगे, मोहब्बत रसूल है। सिगरेट नहीं पिएंगे, नबी ने मना किया है, मोहब्बत रसूल है। नमाज नबी के तरह से पढ़ेंगे, ये मोहब्बत रसूल है। कुरान खानी नहीं करवाएंगे बुला करके, नबी की हदीस से साबित नहीं है, मोहब्बत रसूल है। मुहर्रम नहीं बनाएंगे, मोहब्बत रसूल है। हाथ सीने पे बांधेंगे,
फौका सूरा हाथ बांधेंगे, इसलिए कि नबी ने ऐसा बांधा है। ये मोहब्बत रसूल है। हम पैर सटा के नमाज में खड़े होंगे, इसलिए कि नबी ने सटाया था। ये मोहब्बत रसूल है। नबी ने जोर से आमीन बोला था, हम जोर से आमीन बोलेंगे। ये मोहब्बत रसूल है। मेरे भाइयों, इसी का नाम मोहब्बत है। और मोहब्बत रसूल ही के बारे अल्लाह ने कहा आताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें अल्लाह के रसूल थे उनको ले लो, जिससे रसूल मना करे उससे रुक जाओ। टाइम खत्म हो चुका है, मैं ज्यादा चल रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि पूरी दुनिया पर नजर करके अपनी इल्म में मजबूत करें और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। मेरे भाई, APJ अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनाइए। इतना जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा के BDO CO कलेक्टर की तैयारी कराइए तो हमारा बेटा SP बने, दरोगा बने। नहीं तो ये कौम वो दिन दूर नहीं है कि फलस्तीनी मुसलमानों की तरह